Good morning. Good morning to all of you. Whatever I discussed in the last class, with regard to that, is there any doubt? देखिए जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने जस्ट आपके साथ स्टार्ट किया था टोटमिज्म एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, another major work of Emil Durkheim. After completion of social division of labor, after completion of his theory on suicide, we started with this particular topic. Even though I will brief in first 15 minutes, I will give a brief. I will revise those things that I discussed in the last class. But then also, if you people have any specific doubt, you please ask so that we can proceed further. देखिए लास्ट क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है प्लीज आस्क, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, उसे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको. मैंने जस्ट आपके साथ डिस्कस किया था दैट दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ एमिल डर्कीम दैट वाज पब्लिश इन मच लेटर एज कंपेयर टू हिज वर्क ऑन सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एंड हिज वर्क ऑन सुसाइड, जो कि 1893 1897 में आ रहे थे. उसके कंपैरिजन में आई एम सेइंग दिस वर्क वाज पब्लिश इन 1912 एंड द टाइटल ऑफ दैट वर्क वाज टोटमिज्म एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ. एंड if you go through that title only, so title itself says that probably he was interested in understanding this phenomena of religion in its simplest form, in its most basic form, underlying structure of religion that perhaps he wanted to study. And just like I do in all other classes, जैसा कि देखिए हम previous classes में कर रहे थे, whenever we were starting with any particular topic, we were defining our scope, that in what manner we will proceed. यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, first I will try to discuss with you people that why he choose this particular matter as a subject matter of his study. Second, I discussed that he tried to review, he tried to go for existing explanation about elementary form of religion or earliest form of religion, जहाँ पे दो major theories थी, animism की which was given by E.B. Tylor and naturalism which was given by Max Muller. इन स्टडीज को, इन एक्सप्लेनेशंस को रिव्यू करके देन ही केम अप विथ हिज ओन आइडिया अबाउट टोटमिज्म, सैक्रेड एंड प्रोफेन. आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग आई विल गिव ए क्रिटिकल इवेल्युएशन अबाउट हिज स्टडी ऑन रिलीजन. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो देखिए जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाई ही टुक religion as a subject matter of his analysis. When I was taking this particular aspect, मैंने आपको बताया था, just because he wanted to study religion in its primitive form, in earliest form, basic form. So according to Durkheim, true essence, true nature of religion can be understood only when you see it in its earliest form, when you see it in its pristine form, in its purest form, when complexities have not get attached. अगर मॉडर्न डे रिलीजन आपको देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अटैच हो गई हैं. सो दैट वाज वन मेजर ऑब्जेक्टिव एम ऑफ डर्कीम. सेकंड, मैंने आपको बताया था, ही जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू सी द रिलीजन का जो इसेंस है इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म, उससे कंपेयर करके आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं अबाउट कंटेम्प्रेरी रिलीजन. थर्ड थिंग आई वाज सेइंग कि पॉजिटिव साइंस के थ्रू स्टडी करना चाह रहे थे. He wanted to explore a kind of interconnection, a kind of relationship between religion and society. And last thing that I told you, that Durkheim will try to demonstrate that when you worship God, when you worship religion, it is nothing. It is a collective representation of society. That is society in divine form, that is religion. And by worshipping God, indirectly you are worshipping society. That will be his final aim. Ultimately, he will prove that thing. ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. दोज हु हैव नॉट अटेंडेड लास्ट क्लास, दे कैन गो थ्रू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. वहाँ पे क्लास है आपके लिए, आप उसे देख सकते हैं. एंड यू कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट एवर आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास, आफ्टर गोइंग थ्रू दोज बेसिक एम्स एंड मोटिव्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया सर्टेन एस्पेक्ट रिलेटेड टू डर्कीम्स वर्क. दैट सिंस एक ये पॉजिटिविस्टिक स्टडी है, बीइंग ए पॉजिटिविस्टिक स्टडी, just like in case of suicide, what Durkheim did, he went through existing explanation. जो existing explanations थी,
उन्हें डरखीम ने स्टडी किया था वाइल स्टडीइंग सुसाइड, और जानने की कोशिश की थी. ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड whether those existing explanations, whether those existing belief ideas about earliest form of religion, they can be subjected to positivistic methodology or not, scientific methods or not. और उसके बेसिस पे जो दो मेजर एक्सप्लेनेशंस उन्होंने पाया, दैट वाज वन गिवन बाय E.B. Tylor, that was related with animism, and second was of Max Muller, that was related to nature worship. ये लोग भी ऐसा बोल रहे थे कि perhaps animism is the earliest form of religion, perhaps naturalism is the earliest form of religion, but Durkheim का कहना था कि animism और soul worship, that was not the earliest form of religious faith. Naturalism was not the earliest form of religious faith. कैसे? Because he tried to make clear that both of these scholars, they have reduced religion as something which is unreal. In case of Tylor, he tried to prove that Tylor reduced religion in terms of an illusion, ek maya, in terms of soul worship. And you cannot study soul with application of positive science methodology. Positive science methodology से आप किसी आइडिया की स्टडी नहीं कर सकते. You can study something that is empirically observable, that we have been discussing repeatedly. And because of that, he was saying that idea of E.B. Tylor, where he was saying that and soul worship or spiritual being ki worship, that was the earliest form of religious faith, that is wrong. That he tried to prove, because it is reducing religion, which is a real phenomena, into an unreal phenomena, into an illusion. उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसे? मैक्स मुलर को. मैक्स मुलर, ही वाज एन इंडोलॉजिस्ट हु स्टडीड इंडियन वेदास, वैदिक टेक्स्ट, और ऋग वेदा में उन्होंने ऐसा पाया दैट देयर इज मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ मदर अर्थ, वर्शिप ऑफ सन गॉड, वर्शिप ऑफ रेन, थंडरस्टॉर्म, फायर. इनके बेसिस पे बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर वाज सेइंग दैट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ फियर primitive man would have started worshipping these natural forces, and because of that Durkheim is criticizing. Durkheim बोल रहे हैं कि आप तो रिलीजन को hallucination बना दे रहे हैं. hallucination क्या है? That I explained you in the last class, that hallucination means belief in something because of fear which does not exist, and because of that he was saying कि this nature worship, where people started worshipping natural forces just because of fear, that is also not the most primitive form of religious faith, as it is reducing religion again into something which is unreal. So both these explanations of Tylor as well as what? Max Muller, they have reduced religion into something which is unreal, that cannot be verified, but according to Durkheim, religion is something which is real. Religion, its faith, practices, you can see in society, and it is very present, strongly present. There is no society without religion. It is universal fact. And he is saying people have identified with religion. People found a meaning in their life from religion. People have lived and died for religion. Religious what took place. So it is not unreal thing. It is concrete force. It is real force. It is permanent throughout society, and its causes should be also in something which is real. दूसरी जो डिफिनेशन थी उस समय की, वन डिफिनेशन, वन एक्सप्लेनेशन आई डिस्कस विथ यू पीपल ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर. एंड व्हाट हर्बर्ट स्पेंसर वाज सेइंग, हर्बर्ट स्पेंसर वाज सेइंग दैट रिलीजन इज ऑल अबाउट सुपरनैचुरल बिलीफ. सुपरनैचुरल बिलीफ, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्रू सम एग्जांपल्स आई ट्राई टू प्रूव दैट रिलीजन इज नॉट अबाउट सुपरनैचुरल, और दिस डायकोटमी, दैट इज नेचर वर्सेस सुपर नेचर, दिस डायकोटमी वाज प्योरली अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. There are number of societies, they don't believe in such kind of dichotomy between nature and what? Supernature. So that explanation, by giving certain example in the last class, I rejected that religion is not just about supernatural. मैंने बहुत सारी आपको चीजें बताई, कहानियां बताई about भगवान राम, कृष्ण, जहां पे कुछ भी ऐसा supernatural नहीं लग रहा था, सब कुछ natural जैसा ही लग रहा था. Then there was another common sensical definition that religion is about वर्शिपिंग गॉड. रिलीजन इज अबाउट वर्शिपिंग गॉड, बट बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जिसमें गॉड का कोई मेंशन नहीं. देयर इज नो मेंशन ऑफ गॉड, लाइक बुद्धिज्म में, लाइक जैनिज्म में. मैंने कन्फ्यूशिज्म का एग्जांपल आपको दिया. सो दीज आर द रिलीजन वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ गॉड.
So if you consider religion as a worship of God, then these religion probably may not come under category of religion. ऐसा हो सकता है. And because of that, Durkheim rejected all these definitions, all these explanations, all these ideas by saying that they are perhaps sociologically inadequate. ये बात समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. This much I discussed in the last class. इतना मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और उसके बेसिस पे अगर आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स, सो यू आर फ्री, दैट इज योर राइट, दैट यू शुड आस्क. दिस इज समथिंग ऑन विच he rejected those explanations of E.B. Tylor, those explanations of Max Muller, that animism, naturalism cannot be the earliest form of religious life. Durkheim was saying that religion is something which is real, religion is something that is outside you, religion is something that controls you, religion is something that is real. इसके जो इफेक्ट है रियल है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो Durkheim is saying, later on it will try to prove that religion is nothing but religion is society itself. कैसे प्रूव होगा, that I will discuss later on. But एक डायकोटमी मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन की थी. Just I started with this thing. Just I started with thing that religion is about this dichotomy of sacred and profane. ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा. इसके बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दिया था. यहां तक फ्रेंड्स कोई डाउट है तो पूछिए. Till here, if it is clear to you people or not. देखिए, नो डाउट तो ऐसा, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि देयर इज नो डाउट. जरूर डाउट आने चाहिए. यू शुड आस्क. देखिए, अगर आपने इस पे पढ़ा है और सोचा है तो यू पीपल शुड आस्क सम डाउट. पूछना पड़ेगा. देखिए, आपको नहीं पूछ रहे हैं, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, तो देखिए थोड़ा सा डाउटफुल है. इतना भी अच्छा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि सब समझ में आ जाए. देखिए, कोई डाउट आने चाहिए, बिकॉज मेनी ऑफ आइडियाज आर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. उनको मैं इजी लैंग्वेज में करके आपको बता रहा हूं. सो आई प्रिज्यूम कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर लूं एज पर योर फीडबैक. जो फीडबैक आप लोग दे रहे थे, कोई देखिए ये एक तरह की डिस्टेंट लर्निंग है. आई एम नॉट एबल टू सी यू पीपल. वी आर इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. सो देखिए, वॉट एवर फीडबैक यू आर गिविंग मी, दैट फीडबैक आई एम टेकिंग. कि यहां तक हमने आपको जो भी डिस्कस किया, एक्सेप्ट सैक्रेड एंड प्रोफेन, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे. टिल नाउ यू पीपल हैव नो डाउट एज पर योर फीडबैक आई एम टेकिंग. यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को. यहां तक सब क्लियर है दोस्तों? ठीक है. सो ऑलराइट, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि बेस्ड ऑन ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उनको हम दो डायकोटमीज में डिवाइड करते हैं, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. लाइक आप किसी डिनर पार्टी में गए और वहां से वापस आए, पेरेंट्स आस्क व्हाट हाउ वाज द फूड. आपने बोला अच्छा था, या आपने बोला खराब था. सो गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, एथिकल अनएथिकल, मोरल इमोरल, रिच पुअर, हाई लो, कोल्ड हॉट, ये सब कुछ डायकोटमीज हैं. और जब इन डायकोटमीज को अपनी रियल लाइफ में आप अप्लाई करते हैं, तो वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, यू कैन डिवाइड योर एक्सपीरियंस इनटू दीज टू कैटेगरीज, राइट रॉन्ग, मोरल इमोरल, एथिकल अनएथिकल, रिच पुअर. इस तरह की डायकोटमीज में आप डिवाइड कर लेते हैं. तो इन एवरी सोसाइटी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर ड्यूअलिस्टिक इन नेचर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक डायकोटमी में होते हैं. जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उसको आप तो या तो इस कंपार्टमेंट में या तो उस कंपार्टमेंट में रख देते हैं. अच्छा या बुरा पर्सन था, सही है या गलत है, मोरल है या इमोरल है, इस तरह से आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन बना कर रखा है. एंड वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव इन योर लाइफ, you keep those experiences into either this compartment or other compartment. That I am referring as duality of life experiences. So in every society you may find such duality of life experience, and in a similar manner Durkheim is saying, what Durkheim is saying that पहला तो उन्होंने बोला है
कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, दीज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दे आर ड्यूलिस्टिक इन नेचर. ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दे आर ड्यूलिस्टिक इन नेचर. ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? रिलीजन इन एवरी सोसाइटी डिवाइड in terms of two dichotomy, sacred and profane. इन दो डायकोटमी में वर्ड को डिवाइड करता है. So religion is something that divides the word into two compartment, sacred and profane, जिसमें जो sacred वाला डोमेन है, religion is all about sacred thing. Sacred क्या है that I will explain. But आपके जो life experiences हैं, they are dualistic in nature, dichotomous in nature. कैसे? That I told you. And religion is something that divides your world, your social world, into two dichotomy, that is sacred and profane. And religion is all about sacred thing. Religion किसके बारे में है? Sacred thing के बारे में. So religion is your belief and practices associated with sacred thing. That is being argued by Durkheim. Sacred क्या है? Profane क्या है? That till now I have not explained. That I am going to explain. But this much, friends, you are able to understand or not, that how your life experiences are dualistic in nature. And now Durkheim is saying that in every society, religion divides your social world into two compartments. One is related with sacred, another is related with profane. This much is clear or not? रिलीजन आपके सोशल वर्ड को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, सैक्रेड कंपार्टमेंट एंड प्रोफेन कंपार्टमेंट, वेयर ही विल लेटर ऑन कंक्लूड दैट रिलीजन इज ऑल अबाउट सैक्रेड थिंग. अब देखिए सैक्रेड है क्या? डर्कीम इज सेइंग दैट सैक्रेड इज समथिंग विच इज डिसाइडेड बाय सोसाइटी. सोसाइटी डिसाइड करती है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज सैक्रेड, ये आपके लिए प्योर है, ये आपके लिए पायस है, एंड ऐसी सारी चीजें दे आर द डोमेन ऑफ रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन हिंदू, योर रिलीजन सेज दैट वाटर ऑफ गैंगेस, गंगा का जो वाटर है वो आपके लिए काफी प्योर है. बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में उस वाटर को आप क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय हूम? सोसाइटी. सोसाइटी सुपर इम्पोजेज इट ऑन यू. नथिंग इज सैक्रेड बाय इटसेल्फ. तो हो सकता है कि अगर आप इंपीरिकली ऑब्जर्व करें, जो भी आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ी है, अगर आप इंपीरिकली ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे पोल्यूटेंट, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा फिल्थ, दैट मे बी इन द वाटर ऑफ गैंगेस, दैट मे बी इन द वाटर ऑफ गंगा. दैट इज इंपीरिकली. वो पानी बहुत ही गंदा हो सकता है, और वो आपके कंजम्पशन के लिए सेफ भी ना हो सकता है कि बहुत सारे पोल्यूटेंट आपकी बॉडी में चले जाएं अगर आप उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं. बट सोसाइटी कंसीडर इज व्हाट? सैक्रेड. सो नथिंग इज सैक्रेड ऑन इट्स ओन. इट इज सैक्रेड बिकॉज हिंदूज दे बिलीव इट इज सैक्रेड. सोसाइटी आस्क यू टू कंसीडर इट सैक्रेड. सो इट इज सोसाइटी, फ्रेंड, दैट डिसाइड्स दैट ए पर्टिकुलर थिंग कैन बी ऑब्जेक्ट, particular thing can be idea, a particular thing can be a symbol, because society decides, society says that this is sacred, and that's why it is sacred. It cannot be verified empirically that कि भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि अपने हेयर को ओपन कर दें, अपनी जटा को खोल दें, और गंगा वहां से फ्लो रही. सो दिस गैंगेज वाटर इज कमिंग फ्रॉम द हेड, फ्रॉम हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा. इसको एम्पिरिकली आप क्या नहीं कर सकते? ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ये बात समझ पा रहे हैं? सो ये सब है आपके कहानियों में, आपके पुराणों में, ऐसा उपनिषद में मेंशन होगा, रिलीजियस टेक्स्ट में, कि जब भगीरथ ने ऐसी रिक्वेस्ट की भगवान शिव से और उन्होंने अपनी जटा को खोल दिया तो गंगा उसमें से रिलीज हो गई. सो इसको आप एम्पिरिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सो नथिंग इज सैक्रेड बिकॉज यू कैन वेरीफाई इट एम्पिरिकली, एंड नथिंग इज सैक्रेड बिकॉज देयर इज समथिंग इंट्रिंसिक टू इट. उसमें ऐसी कोई क्वालिटी है. सो जब आप कहते हैं कि काउज मिल्क इज बेटर देन बफेलो मिल्क, तो ऐसा नहीं कि आपने वेरीफाई किया है कि उसमें विटामिन, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और नेसेसरी मिनरल्स ज्यादा हैं और बफेलो के मिल्क में कम है. सो एनीथिंग इज सैक्रेड बिकॉज सोसाइटी कंसीडर इट सैक्रेड. सो व्हाट आई एम सेइंग कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट
इज सैक्रेड बिकॉज सोसाइटी कंसीडर इट सैक्रेड। ये बात समझ पा रहे हैं? ये सोसाइटी का डिसीजन है, ये सुपर इम्पोज है बाई सोसाइटी। इट इज नॉट सैक्रेड ऑन इट्स ओन just because of certain utilities it carries, just because you can observe it empirically, verify, ऐसा नहीं है। सोसाइटी ने सुपर इम्पोज किया है एंड यू बिलीव दैट पर्टिकुलर थिंग इज सैक्रेड। ये पहली चीज समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? देन आई विल प्रोसीड कि नथिंग इज सैक्रेड ऑन इट्स ओन, इट इज सोसाइटी दैट डिफाइंस, दैट डिसाइड्स, and because of that particular thing is regarded as sacred. Then second I am saying, according to Durkheim, sacred is something which is regarded as powerful, superior than profane. जो sacred है, it makes some ethical demands. ये आपसे कुछ demands करता है. It is regarded as powerful. And if those demands are getting fulfilled, then you believe that sacred will reciprocate. So आप माँ काली को कुछ ब्लड चढ़ाते हैं बेसिकली, किसी होप में बेसिकली कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. सो समथिंग आई एम सेइंग कि वॉट एवर यू आर कंसिडरिंग सैक्रेड, यू ऑलवेज कंसिडर दैट एक्सेस टू दिस सैक्रेड थिंग, इट शुड बी अप्रोच इन ए पर्टिकुलर मैनर. सो जो चीज आप सैक्रेड कंसिडर कर रहे हैं उससे आप उसी तरह से अप्रोच नहीं करते जिस तरह से आप प्रोफेन को कंसिडर करते हैं. लाइक आप सो के उठने के बाद कैसे अपने शूज को पिक करेंगे, उसके लिए शायद कोई रूल्स ना हो, बट कैसे घर के उस हिस्से में एंट्री करेंगे जहां पे टेम्पल हो, वहां पे शायद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, दैट यू शुड नॉट एंटर इनटू दिस रूम विदाउट बाथ, यू शुड नॉट टच दिस थिंग विदाउट बाथ. सो एक्सेस टू एनी सच सैक्रेड ऑब्जेक्ट इज रेगुलेटेड in a particular manner associated with some rituals. So that is being asked by Durkheim, that sacred objects are those that demands something from individuals, and if you fulfill these demands, it is believed that sacred object will reciprocate. Access to these sacred should be regulated carefully, associated with some rituals. So always your access to this sacred is associated with some rituals. Sacred demands something from you, and if you fulfill these demands, then it is believed that sacred will reciprocate. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? सैक्रेड को प्रोफेन ऑब्जेक्ट से अलग रखा जाता है, क्योंकि प्रोफेन ऑब्जेक्ट्स सैक्रेड को पोल्यूट कर सकते हैं, सैक्रेड को डिफाइल कर सकते हैं. यू कैन नॉट अप्रोच सैक्रेड थिंग्स इन अ सिमिलर मैनर एज यू अप्रोच प्रोफेन थिंग. A society decides that this particular thing is sacred. There is nothing intrinsic about that thing that you can empirically observe, verify. All these features that you may see on your screen also, that you are able to understand on it. मैंने आपसे बोला कि जो sacredness है, that is superimpose. Superimpose से मतलब ये है कि कोई चीज sacred है, ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी ने डिसाइड किया है. Societal definition is that it is sacred, and that you accept. Nothing is sacred just because it has something utilitarian. तो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ यूटिलिटेरियन है. जैसे मैंने आपको काऊ के बारे में बोला, हिंदूज आर स्टिल वेरी टची अबाउट काऊ. काऊ का डेथ हो जाए उनको काफी दुख है, बट बफेलो की डेथ हो जाए तो उतना दुख नहीं है. सो देखिए, ऐसा नहीं कि बफेलो के मिल्क में वो बात नहीं है जो काऊ के मिल्क में है. सो इट इज नॉट अबाउट यूटिलिटी, इट इज नॉट सम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट थिंग, इट इज जस्ट अबाउट सोसाइटल definition, societal decision that something is sacred. So sacredness is superimposed. This point is clear. Anything which you have decided that it is sacred, it demands some respect, some reverence, and these things are always treated with some rituals. तो आप हमेशा पाएंगे कि जब रुद्राभिषेक हो रहा है तो जो शिवलिंग लेके आए हैं प्रीस्ट, उसको देखिए बहुत रिचुअल्स के साथ वो हैंडल कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे रिचुअल्स अटैच हैं. सो एक्सेस टू दीज सैक्रेड थिंग्स, दे आर ऑलवेज अप्रोच इन सम स्पेशल मैनर. सो ऑलवेज सम सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, सम सिस्टम ऑफ रिचुअल्स आर एसोसिएटेड विद सैक्रेड ऑब्जेक्ट. ये बात समझ पा रहे हैं? देन आई एम सेइंग कि ये जो सैक्रेड है ये आपसे कुछ डिमांड करता है, एथिकल डिमांड करता है, और अगर आप इन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं
देन ऐसा बिलीव है कि सैक्रेड ऑब्जेक्ट, सैक्रेड थिंग, सैक्रेड बिलीव ये आपको रेसिप्रोकेट करेगा. सो जस्ट सच ऑब्जेक्ट्स दे मेक सच डिमांड्स लाइक कि आपको थर्सडे को फास्ट रहना चाहिए. अगर आप फुलफिल करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स क्या हो, निकल जाए. तो देखिए, सैक्रेड थिंग्स, सैक्रेड आइडियाज, सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स, sacred beliefs, symbols, they make some ethical demands. They are considered as powerful. So if you fulfill those demands, it is believed in society that it will reciprocate. ये आपको reciprocate करेगा. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? This point, if you people are able to understand, then I will proceed further. यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को? देखिए, नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैक्रेड और सैक्रेडनेस, डर्खीम इज कमिंग अप विथ अ पॉजिटिविस्टिक डिफिनेशन अबाउट रिलीजन. एक पॉजिटिविस्टिक डिफिनेशन ला रहे हैं रिलीजन की, और उस पॉजिटिविस्टिक डिफिनेशन में डर्खीम ऐसा बोल रहे हैं कि रिलीजन इज व्हाट? रिलीजन इज नथिंग, rather it is a belief and practices about sacred thing. Religion is not just about belief, क्योंकि टाइलर के केस में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि E.B. Tyler was saying animism was a belief, animism was an idea, and that was the earliest form of religion, but there is no religion without practice. ऐसा कोई भी religion नहीं है that is without practice. And because of that, Durkheim, when he is defining religion from positivistic perspective, Durkheim is saying that religion is something that is belief and unified system of belief associated with sacred thing. So unified से मेरा मतलब क्या है कि जो belief और जो practices हैं they are creating a kind of unified whole. As per belief, practices are there. There is no society, there is no religion which is without practices. हर religion के साथ कुछ practices क्या हैं associated हैं, like गोट का स्लॉटर हो रहा है किसी पर्टिकुलर डे पे, आप फायर जला रहे हैं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं. सो टाइलर का कहना कि एनिमिज्म ए काइंड ऑफ बिलीफ इन स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स, स्पिरिचुअल बीइंग, दैट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म रिलीजन. उसे क्रिटिसाइज किया था डर्खीम ने ये बोलते हुए कि रिलीजन इज नॉट जस्ट अबाउट बिलीफ, रिलीजन इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिसेस. देयर इज नो रिलीजन इन वर्ड विदाउट प्रैक्टिसेस. सो हाउ ही इज डिफाइनिंग? He is saying religion is a unified system of belief and practices associated with sacred thing, that is things which are set apart and forbidden. Sacred things क्या हैं? जो forbidden हैं, जिनको access एक special तरीके से ही हो सकता है, not in any manner. That is how he is defining religion, that it is a unified system of belief and practices associated with sacred thing. So अगर केवल बिलीफ और प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, सो दिस डिफिनेशन कम्स वेरी क्लोज टू मैजिक ऑल्सो. मैजिक इज ऑल्सो अबाउट सम बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. रिलीजन इज ऑल्सो इज सेइंग सम बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. सो एट दिस स्टेज, टिल नाउ ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज डिफिनेशन. अभी बस उन्होंने एक पार्ट ही डिफिनेशन का बताया है कि रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद सैक्रेड थिंग. But just in order to distinguish religious ideas from magic, magic से religion को distinguish करने के लिए डर्खीम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि belief और practices magic में भी हों और belief and practices religion में भी हैं, but जो magic है दोस्तों, that is individualistic in nature. Magic is utilitarian in nature. Religion is collectivistic in nature. रिलीजन इज नॉन यूटिलिटेरियन इन नेचर. बट आप में से कोई बोलेगा सर मैजिक में भी तो ऐसे ही होता है कि मैं एक मैजिशियन को बुलाते हैं, वो 100-200 लोग के सामने क्या करता है? मैजिक करता है. ये भी एक कलेक्टिव फिनोमेना है? नहीं, इट इज नॉट कलेक्टिव फिनोमेना. यू कॉल मैजिशियन जस्ट लाइक यू कैन कॉल ए डॉक्टर, यू कॉल ए मैजिशियन जस्ट लाइक यू कैन कॉल ए प्लम्बर. सो ये जो फिनोमेना है दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक. You are performing magic,
फॉर सम गोल, यूटिलिटेरियन गोल। आप चाहते हैं कि किसी का कुछ खराब हो जाए, हार्मफुल, जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग हार्म टू समवन, आप ब्लैक मैजिक कर देंगे। ऐसे समाज में एक अवधारणा है, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, नींबू के साथ कुछ मिर्च लगा के उसने कुछ कुछ कर दिया। सो दैट आई एम सेइंग कि यू मे परफॉर्म मैजिक टू ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर समवन, और you may perform magic to bring a harm to someone. So here magic you may be performing just to entertain someone. Magic you may be performing just to gain some money, basically monetary benefit. So here I am saying goal of magic is utilitarian, but goal of religion, moksha, salvation, maya moh se mukti, so these things you cannot verify in terms of utility. So here I am saying कि जो गोल है मैजिक का दैट इज यूटिलिटेरियन, एंड गोल ऑफ रिलीजन इज नॉन यूटिलिटेरियन। दोनों में बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं, बट ये डिस्टिंक्शन समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? जो पार्ट समझ में नहीं आया वो रेस करिए। देखिए प्रोफेन क्या है? प्रोफेन इज समथिंग विच इज अपोजिट ऑफ सैक्रेड। सो जो सैक्रेड नहीं है दोस्त, जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने शूज को बाहर उतार के आते हैं। शूज क्या है? प्रोफेन है। सो थिंग्स विच आर नॉट सैक्रेड, दैट इज प्रोफेन, दैट आई एम सेइंग। और ये जो प्रोफेन है ये सैक्रेड को डिस्टर्ब कर सकता है, डिफाइल कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेन थिंग्स दे शुड केप्ट अपार्ट फ्रॉम सैक्रेड थिंग। ये बात समझ पा रहे हैं? What is sacred? Something that has been decided by society. It can be any object, it can be any symbol, it can be any belief. So देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, देखिए जैसे हिंदूज ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों कि गाय एक सैक्रेड है, काउ इज सैक्रेड, एंड वी ऑल हिंदूज आर द सन एंड डॉटर ऑफ व्हाट? काउ। दैट सोसाइटी हैज डिसाइडेड। हो सकता है कि वैदिक कल्चर के टाइम से those who were nomadic, those who were dependent on such animals of cow family for agriculture or some other activities, उस टाइम से शायद हिंदूज में ऐसा बिलीफ है बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर एनिमल कि काउ इज सैक्रेड। इसी तरह से कोई सोसाइटी ऐसा बोल सकता है कि स्नेक इज सैक्रेड, सांप सैक्रेड है। सो वी हिंदूज वी कॉल कि हम सब गाय के बच्चे हैं। दोज पीपल दे विल से कि हम सब सांप के बच्चे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी को बोलेंगे सांप के बच्चे, दैट में अपीयर एब्यूज टू हिम, बट दोज पीपल विल से विद द प्राइड कि हम सांप के बच्चे हैं, हम कुत्ते के बच्चे हैं, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर एनिमल एज सैक्रेड। सो नथिंग इज सैक्रेड बाई इट सेल्फ, सोसाइटी डिसाइड्स, दैट्स वाई दैट इज सैक्रेड। ये बात समझ पा रहे हैं? वेदर आई एड्रेस योर डाउट और नॉट? एंड समथिंग विच इज नॉट सैक्रेड, दैट इज प्रोफेन। क्योंकि रिलीजन पूरे वर्ड को डिवाइड कर रहा है दो डाइकोटोमस कंपार्टमेंट में। वन इज रिलेटेड विद सैक्रेड ऑब्जेक्ट एंड अदर इज रिलेटेड विद प्रोफेन ऑब्जेक्ट। तो आपका डाउट मैंने क्लियर किया या नहीं? वेदर आई क्लैरिफाइड योर डाउट, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? So unified system of belief and practices associated with sacred things, things which are set apart, things which are forbidden, and at this stage, at the first level of his definition, Durkheim is trying to make a distinction that magic में भी हो सकता है कुछ belief और practices हों, religion में भी कुछ belief and practices हैं, but दोनों अलग हैं। किस term में अलग हैं? He is saying that perhaps magic is utilitarian, magic is individualistic. You are performing for monetary gain, you are performing for entertaining someone. Religion is not utilitarian. Goals of religion, that is salvation, goals of religion, that is moksha, goals of religion, that is nirvana, these are something that you cannot verify. ये non utilitarian goals हैं, that is a difference. Religion is a collectivistic force, magic is a individualistic force. You are inviting a magician on your child's birthday just to entertain some group of children.
सो ये यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमिना है, ये कलेक्टिविस्टिक फिनोमिना नहीं है, जबकि रिलीजन इट बाइंड्स पीपल, इट इज डिफ्यूज थ्रू आउट द सोसाइटी, दैट Durkheim has already argued. So how magic is different, how religion is different as per Durkheim at this stage when he is trying to define religion. ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफिनेशन है कि इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद सैक्रेड थिंग, यहां तक समझ पा रहे हैं दोस्तों? एकदम सही बोल रहे हैं. समथिंग विच इज सैक्रेड दैट इज अ सोशल फैक्ट. यू आर राइट, अगर कोई चीज सैक्रेड है तो ये सोशल फैक्ट है. ये जो काऊ का मिल्क, काऊ डंक या जो भी है, ये इसको लेकर जो बिलीफ है फ्रेंड कि इट इज अ सैक्रेड, ये तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है. वो तीन क्राइटेरियाज क्या थे? एक्सटीरियोरिटी, जनरलिटी एंड कंस्ट्रेनिंग. ये थ्री criterias I have discussed with you people. All these three criterias are getting fulfilled in case of if you see something sacred from a perspective of a particular society. तो जो भी sacred है that is a social fact. You are right. ये बात क्लियर हो रहा है? ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया. So his first level of definition is religion is about belief and practices associated with sacred things that are set apart, things that are forbidden. Now, on the basis of his study on Arunta tribe in Australia, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की ये जो अरुंटा ट्राइब है, इसकी स्टडी के बेसिस पे कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कौन? एमिल डर्कीम. Even though he himself never visited Arunta tribe, he never had first-hand experience about Arunta tribe, but those anthropologists, those scholars, those who have already studied this particular primitive tribe of Australia, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो कंक्लूजन्स हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशन हैं, उनके बेसिस पे देर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस बीइंग मेड बाय एमिल डर्कीम. एमिल डर्कीम खुद अरुंटा ट्राइब की स्टडी करने नहीं गए, बट दोज हु स्टडीड लाइक इवांस पिचैड, लाइक बेंजामिन हैवेट, इस तरह के जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अगर उन्होंने स्टडी की है तो उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दैट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्शिप इज बीइंग फाउंड अमंग दिस पर्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइब दैट इज अरुंटा. अरुंटाज में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्शिप पाई गई जिसे टोटेम वर्शिप बोला गया, टोटेमिज्म. और टोटेम इन केस ऑफ अरुंटास वाज नथिंग, इट वाज एन ऑब्जेक्ट. इट कैन बी एनिमेट, इट कैन बी इनएनिमेट, फ्रॉम विच members of all totem group they share their descent. So what Durkheim is saying, on the basis of his observation over Arunta tribe, his observation about totemism in Arunta tribe, he is saying that by worshipping a common totem, members of same totem group, they trace a common name, they trace a common descent, they trace a common identity, and they develop a oneness among themselves just because they are worshipping a particular totem. ये totem object हो सकता है, it can be any symbol, it can be any plant, it can be any animal, ये कुछ भी हो सकता है. By worshipping that totem, you are considering yourself as a member of single group. So this single identity, it provides them a kind of commonness, and they start thinking that we all are related by blood ties, even though empirically आप इसे verify नहीं कर सकते. Totem is such a large group that you cannot verify that each one is related to each other by blood ties. But just by worshipping a common totem, belief in common totem,
religious faith in common totem, members of all totem group, they consider that they are one, they have a single identity, they have a commonness, and that is being observed by whom? Emil Durkheim. So what I discussed with you people in the last class, that Indian concept of gotra, जो आपका sociological concept है, that is very similar to totem, where members belonging to same gotras, they even today consider that they should not marry among themselves. So अभी भी marriages में गोत्र पूछा जाता है, even though आप इसको empirically क्या नहीं करते, verify नहीं करते, तो totem is very much equivalent to गोत्र. टोटेम की वर्शिप कर रहे हैं आप, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एनिमल की, किसी प्लांट की, किसी सिंबल की वर्शिप कर रहे हैं, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव बिलीव इन दैट टोटेम, ऑल सच पीपल दे कंसीडर दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल ग्रुप, दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल आइडेंटिटी, दे शेयर समथिंग अमंग देमसेल्फ दैट इज कॉमन, दे आर वन फैमिली. इन दिस मैनर दे डेवलप थॉट, एंड सच वर्शिप इन कॉमन टोटेम, इट helps in developing some mutual obligation. So जो totem worship है, ये compel करता है आपको for some duties. And what are these duties? These duties are in form of not to marry among themselves. आपस में आपको क्या नहीं करना है? Marriage नहीं करना है. You should not indulge into any sexual conduct among themselves just because you are worshipping same totem. So such worship in same totem, that was giving you a single identity, that was giving you a single name, that was giving you a sense of commonness. That commonness helps in developing some mutual obligation, some common duties towards each other. It is related with some sort of conduct, and what conduct that you are not supposed to. So members of same totem group, they are not supposed to marry among themselves. Members of same total group, they are not supposed to have some sexual conduct among themselves. And during any mourning का मतलब क्या है? When a person dies and a meeting is being held and you go there to offer your condolences, your sympathies, that is known as mourning. So during such mourning you should participate. सुख दुख में आपको क्या करना है? Participate करना है. इस तरह की ड्यूटीज आ रही हैं आपके ऊपर, just because you belong to a common totem. ये बात फ्रेंड्स समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? This thing you are able to understand or not? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है. So what I'm saying, just because you are worshipping a common totem, just because you are worshipping common totem, you are showing similar kind of behavioral pattern, mutual obligation, certain duties towards each other, and such totem worship, ये जो totem worship है, in such simple societies, ऐसी simple societies में दोस्तों जहां पे absence of legally enforceable norms है, जहां पे कोई लॉ नहीं है, सच इन्फोर्सिएबल नॉर्म्स नहीं है, ऐसे प्रिमिटिव सोसाइटीज में, ऐसे सिंपल सोसाइटीज में, सच बिलीफ इन टोटेम, सच आइडेंटिटी दैट यू आर डिराइविंग फ्रॉम टोटेम, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ए नॉर्मेटिव पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू another totem group, another society, a society that believes in some other totem, if a person belonging to that totemic group, that other society, he attacks on you, so that attack will not be considered as an attack on you as an individual, rather that attack will be considered as an attack on entire totem group and some other member of your totem group, along with more 2-3 more people. They will go and they will take badla, revenge from that person, from other totem group, from other society, because in such simple societies, this totem identity is giving you a sense of commonness, and if someone else from other totemic group, other society, जिनका किसी और टोटम में बिलीव था, इस टोटम में बिलीव नहीं था, they will be regarded as we versus they. हम अलग हैं और वो क्या हैं? अलग हैं. और अगर उनमें से किसी ने आप पे अटैक किया है तो यू मे नॉट बी एबल टू टेक रिवेंज,
but on your part, some other member of your own totem group, they will go and they will take the revenge. This thing you are able to understand or not? What is the utility of totem for totemic kind of societies, such simple kind of societies? So ये जो totem है, it will bring a set of interdiction. Set of interdiction का मतलब है set of prohibition. So अगर किसी bird को आपने totem माना हुआ है, किसी particular animal को आपने totem माना हुआ है, तो you will resist yourself from eating that bird. You will resist yourself from eating that particular animal. So Hindus अभी भी भले ही वो नॉन वेजिटेरियन हो, बट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन ईटिंग फ्लैश ऑफ काउ बिकॉज दे कंसीडर काउ एज व्हाट सैक्रेड. तो अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल को, किसी पर्टिकुलर बर्ड को आप टोटेम मान रहे हैं, तो इट विल ब्रिंग ए सेट ऑफ डूज एंड डोंट. क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप पे लाता है. तो सुबह घर से निकलते समय अगर एक काऊ आपके सामने, घर के सामने खड़ी है, तो आप थोड़ा सा प्रणाम झुक के कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक एथिकल डिमांड आपसे क्या कर रहा है, मांग रहा है. ऐसे इग्नोर करके आप नहीं जा सकते हैं. सो हियर आई एम सेइंग कि सेट ऑफ इंटरडिक्शंस जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर टोटेम ग्रुप. ये भी एक ऑब्जर्वेशन है किसकी, डरखीम की, कि आप पे कुछ डूस या कुछ डोंट की ऑब्लिगेशन ला रहा है. कुछ आप कर सकते हैं और कुछ आप नहीं कर सकते हैं, just because you believe in that particular totem. Then I am saying कि ये जो टोटम है, कई बार इसके साथ कॉजल एट्रीब्यूट भी अटैच करते हैं मेंबर ऑफ दैट टोटम ग्रुप. सो मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टोटम ग्रुप, टोटम ग्रुप मतलब जो उस पर्टिकुलर टोटम में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, जो उस पर्टिकुलर टोटम की वर्शिप करते हैं, मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर टोटम ग्रुप, दे मे अटैच कॉजल एट्रीब्यूट with that particular totem. Causal attribute with that particular totem से मेरा मतलब क्या है कि सपोज कोई बड़ी बीमारी आ गई ग्रुप में, तो आपने ऐसा समझा कि टोटेम एंग्री हैं, नाग देवता नाराज हैं, भैरव बाबा नाराज है, मतलब ऐसा आपने कुछ समझा कि जस्ट बिकॉज टोटेम गॉट एंग्री, बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल डिड नॉट टेक प्लेस, जस्ट बिकॉज टोटेम गॉट एंग्री दिस टाइम दिस डिजीज केम. सो यू शुड ट्राई टू अपीज टोटेम. पहले टोटेम को अपीज करना पड़ेगा, देन ओनली रेनफॉल विल टेक प्लेस. सो इफ यू अपीज टोटेम, देन ए गुड रेनफॉल केम. इफ टोटेम इज एंग्री, दिस एपिडेमिक केम, रेनफॉल डिड नॉट टेक प्लेस. सो दैट इज हाउ समटाइम्स यू एट्रीब्यूट ए कॉजल एक्सप्लेनेशन विथ होम टोटेम. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्त कि ऐसी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं डरखीम ऑन द बेसिस ऑफ टोटेम वर्शिप दैट वाज फाउंड among Arunta tribe in Australia. These things you are able to understand or not? ये ग्रुप एक्टिविटी है, आप सही समझ रहे हैं. ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं दोस्त. किसी टोटम में बिलीव करना, किसी सिंबल में बिलीव करना कि वो सैक्रेड है, किसी एनिमल में बिलीव करना कि वो सैक्रेड है, किसी प्लांट में बिलीव करना कि वो सैक्रेड है, ये ग्रुप फिनोमिना है. ये बात समझ पा रहे हैं? दिस इज योर डाउट और समथिंग एल्स? वेदर आई एड्रेस योर डाउट व्हाट यू आस्क. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं. डरखीम ने पहले तो E.B. टाइलर, मैक्स मुलर, हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमन सेंसिकल जो एक्सप्लेनेशन थी रिलीजन की, उसे रिजेक्ट किया था, बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन, ट्रू नेचर ऑफ रिलीजन, रिलीजन इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म, रिलीजन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, व्हेन इट हैज नॉट अटैच कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रेजेंट डे रिलीजन. जिसके लिए पहले उन्होंने एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट किया by saying that these explanations cannot be subjected to scientific methodology. They are trying to present religion as something unreal, or they are trying to present religion as something that may be relevant for a particular kind of society. But he wants to give a kind of definition that can be applied to all societies. And because of that, Durkheim is saying that our life experiences are dualistic in nature. And in every society, religion is one such social phenomena that divides our social world in two dichotomies
सैक्रेड एंड प्रोफेन। इसमें रिलीजन डील्स विद सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड क्या है, प्रोफेन क्या, उन्होंने एक्सप्लेन किया। सैक्रेड के फीचर्स उन्होंने एक्सप्लेन किए कि ये सुपर इम्पोज है, कोई इंपीरिकल एविडेंस नहीं है, इंट्रिंसिक नहीं है। सोसाइटी सेज दैट्स व्हाई इट इज सैक्रेड। You can approach sacred only in a particular manner. They are always attached with some rituals. They make some ethical demands. If these demands are getting fulfilled, sacred is supposed to reciprocate. So these things he explained while explaining features of sacred, characteristics of sacred, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक डिफिनेशन बनाना स्टार्ट किया कि रिलीजन इज अबाउट belief and practices associated with sacred things which are set apart, things which are forbidden. And on the basis of study on Aruntas, कुछ और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं डरकीम, इसी के बेसिस पे उस डिफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। सो जब अरुंटा ट्राइब में एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस टोटमिज्म को उन्होंने देखा, जिसमें उस प्रिमिटिव ट्राइब के, उस सिंपल ट्राइब के लोग एक टोटेम में बिलीव कर रहे थे। वो टोटम कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी एनिमल, इट कैन बी एनी प्लांट, इट कैन बी एनी सिंबल, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कुछ भी टोटम हो सकता है। बट उस ग्रुप के लोगों को लगता है कि ये कोई सैक्रेड थिंग है। सो फॉर सच सोसाइटीज दोस्तों, टोटम एक्वायर्स ए कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस फोर्स। टोटम एक्वायर कर रहा है कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस फोर्स, क्योंकि जस्ट बाई बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर टोटम वर्शिप, they develop a sense of identity, they develop a group feeling, they develop a sense of commonness कि हम एक हैं, क्योंकि हम इस सिंबल में, इस एनिमल में, इस प्लांट में वो पूजा करते हैं। दैट्स वी आर, एंड दे आर डिफरेंट बिकॉज दे डोंट कंसिडर दैट दिस इज अ सैक्रेड। सो वी आर मेंबर ऑफ वन ग्रुप, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टोटेम, एंड दे आर मेंबर ऑफ अदर ग्रुप, दे आर नॉट रिलेटेड विद दैट टोटेम। So it gives you this identity of we versus they. दूसरा मैं बोल रहा था कि just because you believe in that particular totem worship, such commonness, it demands some kind of obligations from you, some kind of duties towards each other. And what were those obligations? What were those duties? कि आप आपस में मैरिज नहीं करेंगे, आप आपस में सेक्सुअल कंडक्ट नहीं करेंगे, आप पे अगर कोई अटैक हो रहा है तो पूरे ग्रुप पे अटैक हो रहा है। सो इफ समवन फ्रॉम अदर ग्रुप अटैक्ड ऑन यू, उसका बदला कोई और आपके साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपके ग्रुप पे अटैक हुआ है, क्योंकि ही वॉज नॉट द पर्सन हु बिलीव दैट थिंग इज सैक्रेड, एंड यू ऑल आर द पर्सन हु बिलीव दैट थिंग इज सैक्रेड। सो समहाउ योर अदर फेलो इज योर ब्रदर, इज पार्ट ऑफ दैट सिंगल आइडेंटिटी। सो दिस टोटेम इज गिविंग यू सिंगल आइडेंटिटी विच इज सो पावरफुल दैट इफ समवन एल्स from other totem identity he attacked on any individual from your group, entire group may go and take revenge, not necessarily that group person. ये बात समझ पा रहे हैं। तीसरा मैं आपके साथ ऐसा बोल रहा था कि just because of this totem worship there are some interdictions. Interdictions means कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एनिमल या पीजन को सैक्रेड मानते हैं तो यू कैन नॉट ईट दैट एनिमल और पीजन। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था। देन आई टोल्ड यू पीपल दैट जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन पर्टिकुलर टोटम, दिस टोटम वर्शिप, पीपल हु बिलीव इन ए पर्टिकुलर टोटम उसके साथ कुछ कॉजल एट्रीब्यूट भी अटैच करते हैं। कॉजल एट्रीब्यूट कैसे अटैच करते हैं कि अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट टोटम, अगर कुछ खराब हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट टोटम। सो दैट काइंड ऑफ कॉजल एट्रीब्यूट that also people they were attaching in that primitive tribe known as Aruntas. So Arunta जो कि एक primitive tribal group है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे एक तरह का religious faith पाया गया known as totemism। उसके बेसिस पे डरखीम ये कंक्लूड करेंगे कि what function that totem which has acquired a character of religious faith was serving for people belonging to Arunta tribe, that he is trying to conclude. बट यहां तक अगर आप समझ पाए देन ओनली आई विल गिव यू दोस टू कंक्लूजन। यहां तक समझ पाए? यस, उस सोसाइटी के लिए दोस्त टोटेम सोशल फैक्ट है। जिस सोसाइटी में टोटेम वर्शिप हो रही है, फॉर दैट सोसाइटी दैट इज सोशल फैक्ट। ये बात समझ पा रहे हैं?
on the basis of these features of totemism या टोटम वर्शिप. टोटम वर्शिप आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दे रहा था. टोटम वर्शिप की वजह से आप एक कॉमन नेम ट्रेस कर रहे थे. टोटम वर्शिप आपको एक कॉमन देश दे रहा था. टोटम वर्शिप आप पे कुछ ऑब्लिगेशंस ला रहा था. टोटम वर्शिप आप पे कुछ इंटरडिक्शन ला रहा था, कुछ प्रोहिबिशंस ला रहा था. इनके बेसिस पे डरखीम इज ट्राइंग टू कंक्लूड टू इंपॉर्टेंट. ये एक बार देख लेगा दीपक. On the basis of Durkheim is trying to conclude two important function of totem. Whatever I discuss with regard to totem with you people, that was found among Arunta tribe. आप ये समझ सकते हैं कि टोटम के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं. देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो टोटम वर्शिप है या जो टोटमिज्म आप स्टडी कर रहे हैं अमंग अरुंटा ट्राइब, ये आपको एक बेसिक ग्रुप आइडेंटिटी दे रहा है. टोटेम आपको कंपेल कर रहा है टू रिकॉग्नाइज योर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस. आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. टोटेम बिलीफ ये आपको बोला है कि जो चीज सैक्रेड है, जो टोटेम है, उसको बाकी चीजों से आप अलग रखिए. डोंट कंसीडर इट जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल. दूसरा एनिमल आप नॉन वेजिटेरियन तो आप खा सकते हैं, बट दैट एनिमल यू शुड कीप असाइड. कीप काउ असाइड. इफ यू कंसीडर दैट एज सैक्रेड, देन इट्स अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, रिचुअल्स दैट यूनिफाइज पीपल. सो इसके बेसिस पे डरखीम दो कंक्लूजन्स दे रहे हैं. पहला कंक्लूजन ये दे रहे हैं कि ये जो टोटम में आपका बिलीफ है, उस ऑब्जेक्ट में जो आपका बिलीफ है, उस प्लांट में जो आपका बिलीफ है, या उस एनिमल में जो आपका बिलीफ है, दैट यूनिफाइज यू. इट्स मेक्स यू मोर सॉलिडरिस्टिक. यू कंसीडर योरसेल्फ एज वन बिकॉज यू हैव फेथ इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, considering it as a religious object. So the first function of totem is that it gives you sense of solidarity. It gives you sense of identity to those people who belongs to that particular totem group. That is first thing. Second thing I am saying that this particular totem in which you have full faith and belief, it acts as an agency of regulation. It acts as an agency of control. ये एक एजेंसी ऑफ रेगुलेशन या ये एक एजेंसी ऑफ कंट्रोल की तरह से काम कर रहा है. दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ टोटम दैट इज टोटम वर्शिप इज फुलफिलिंग, डिस्चार्जिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ अरुंटा ट्राइब. ये उन्हें सॉलिडरिस्टिक कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, एट द सेम टाइम उनके कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है. ये बात समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड या नहीं? टोटम के ये जो दो फंक्शंस हैं, दैट डरखीम इज कंक्लूडिंग कि ऑन वन हैंड इट इज इंप्रूविंग और क्रिएटिंग ए सॉलिडेरिटी अमंग मेंबर्स ऑफ अरुंटा ट्राइब, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज ट्राइंग टू रेगुलेट देयर कंडक्ट इन देयर लाइफ. दीज टू फंक्शंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑफ टोटम और नॉट? ये दो फंक्शंस टोटम के अरुंटा ट्राइब के केस में आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? Yes, if you are able to understand these two functions of totem worship for Arunta tribe, then Durkheim is concluding that religion has its two important functions for society. First function is that religion creates unity. Religion creates cohesion among members of those who believe in that particular religion. And second, religion acts as a moral agency to control your behavior. These are the two basic functions of religion that he can conclude by looking into that earliest form of religious faith, totemism, in one of the most primitive society, that is Arunta tribe of Australia. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों कि how Durkheim is making these two conclusions? How he is able to make these two conclusions about religion on the basis of his observation about Aruntas? Religion acts as an agency to improve cohesion and solidarity among people, and religion acts an agency for control for people's individual behavior. These two functional role of religion you are able to understand or not? Religion controls your behavior.
You fast because religion demands from you that you should fast. People, they give up their food, their water among Jains. They practice salekhna. Some of them, they die eventually. It is a kind of suicide. So religion आपके conduct को regulate करता है. At the same time, it gives you a unity. It gives a sense of solidarity. These are the two main functions of religion that he concluded on the basis of his observation on totemism, that he is considering as most earliest, most primitive kind of religious faith which was found among one primitive society, that is Aruntas. ये दो फंक्शन रिलीजन के जो फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं डरखीम, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? दिस थिंग you are able to understand these two functions of religion that Durkheim is able to conclude on the basis of his study among Arunta tribe, that it acts as an agency for social control and it helps in increasing solidarity. This thing you are able to understand. ये बात आप लोग को क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जहां तक देखिए अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. आप में से देखिए ज्यादातर लोग बोले कि समझ में आ रहा है. सो देखिए व्हाट आई मीन टू से कि डरखीम एक पॉजिटिविस्टिक डिफिनेशन देना चाहते हैं रिलीजन की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायकोटमी सैक्रेड एंड प्रोफेन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ऑन अरुंटा ट्राइब इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज ट्राइंग टू कंप्लीट नाउ हिज डिफिनेशन. अभी तक हमने डिफिनेशन का केवल फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था कि religion is a unified system of belief and practices associated with sacred things, things which are set apart and forbidden, and these belief and practices binds those who adhere to them, those who follow them, into a moral community known as church. So from this complete definition that religion is a unified system of belief and practices associated with sacred things, that is things which are set apart and forbidden, that binds all those, ये बांधता है उन सारे लोगों को जो इन बिलीफ और प्रैक्टिसेस में भरोसा करते हैं, into a single moral community known as church. So from this definition there are two functions of religion, that is creating a solidarity among people and trying to regulate their conduct in form of a moral force. So what Durkheim is trying to do through this definition? Through this definition, Durkheim is trying to give you two ideas. First idea is, what exactly is religion? What exactly is religion? It is a unified system of belief and practices associated with sacred things, things which are set apart and forbidden. And second is, what it does for you. It does for you that it binds you together into a single moral community known as church, so creating a sense of unity and cohesion and acting as a moral force to regulate your behavior. These are the two main functions of religion that you people are able to understand or not. देखिए इस तरीके से, इस तरह से डिकोड करके, इस तरह से ब्रेक करके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा. बिलीव मी, यू कैन गो थ्रू एनी लेक्चर, बट इस लेवल पे डिकोड करके हर चीज को ब्रेक करके इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स. हर पार्ट को मैं आपको अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं. देन आई एम ट्राइंग टू कंबाइन इट सो दैट यू शुड हैव मोर क्लैरिटी, more understanding that how Durkheim is rejecting animism, naturalism, Herbert Spencer, how he is coming up with the idea of sacred and profane, and how on the basis of that dichotomy and his observation about Arunta tribe in Australia, he is able to provide a positivistic definition about religion that you can apply in any society. Anywhere you can apply. That religion is a unified system of belief and practices associated with sacred objects, objects which are kept apart and forbidden, that binds all those who believe in these belief and practices into a moral community known as church. इसके basis पे what ideas you are able to derive, what is religion and what it does for individual. ये बात समझ पा रहे हैं?
हाउ इट डज इट, दैट अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. बट यहां तक कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. If till now you have any doubt, whatever I discussed till now, then you are free to ask your doubt. Then I will further explain that how religion successfully develops this sense of unity and integrity among individuals. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. देखिए, टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, देन लास्टली आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ रिलीजन हेल्प्स इन डेवलपिंग इन दैट कोहेजन, दैट सॉलिडेरिटी, दैट यूनिटी. हाउ इट डज सक्सेसफुली, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. बट यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. देखिए, हर चीज आपको समझना है एंड यू शुड नेवर थिंक कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ पा रहे हैं. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, समवन एल्स विल अंडरस्टैंड. It is a relative competition, so we are there with you to help you at every level of difficulty. But yes, if you have any difficulty, you should please ask. आप पूछिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है. थर्ड पॉइंट कौन सा बेटा, आप बताइए. थर्ड पॉइंट कौन सा? हाँ, ये थर्ड पॉइंट यहाँ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको भी, इसलिए मैंने इसको अभी मार्क नहीं किया. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. पहले दो पॉइंट ही मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए हैं. Yes, I will explain. उसके अलावा अगर कोई डाउट है, so you should feel free to ask. So till now we just discussed that Durkheim wanted to understand religion in its purest form, in its earliest form, when it has not attached any kind of contamination, impurity or complexity. And for that purpose, he is looking into existing definitions, existing explanation about earliest form of religion. Two such major explanations were given by E.B. Tyler and Max Muller. 3 and 4 we discussed about Herbert Spencer and commonsensical definition. He rejected E.B. Tyler and Max Muller by saying that both of them, they have reduced religion into something unreal, either illusion or hallucination. Herbert Spencer को वो criticize कर रहे हैं ये बोलते हुए कि religion is not about only supernatural. There is no such dichotomy clearly defined what is nature, what is supernatural. Commonsensical definition को उन्होंने reject किया था ये बोलते हुए कि religion is not just about God, there are religion without God also. Then he came up with his own idea about religion because he wants to find out the source of religion in society itself, and he is saying that religion divides our entire social world into two compartments, two dichotomies. One is sacred and second is profane. Religion deals with all sacred things. Profane things are those which are not sacred. That has potential to defile sacred. That has potential to contaminate sacred. After saying this much, he came up with the characteristics of sacred. ये superimposed है, intrinsic नहीं है, non-empirical है. Society decides that something is sacred. Sacred makes some ethical demands. You should approach it in a particular manner, associated with some ritual, supposed to reciprocate. ये सब बहुत सारे हमने फीचर डिस्कस किए किसके, सैक्रेडनेस के. और उसके बाद उन्होंने अपनी डिफिनेशन बनाना स्टार्ट किया, ए पॉजिटिविस्टिक डिफिनेशन दैट यू मे अप्लाई इन ऑल काइंड ऑफ सोसाइटी. इसका फर्स्ट पार्ट ये था कि रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद सैक्रेड थिंग. दैट ही इज जस्ट टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्टिंग एनिमिज्म, naturalism, Herbert Spencer, and on the basis of that dichotomies of sacred and profane. Second part के लिए he is using certain observations that he made on Arunta tribe in Australia. Even though these observations were not first hand observation, second hand observation on the basis of certain studies already conducted by some anthropologists. He is saying that Arunta tribe में जो totem worship चल रही थी, that was giving them a sense of identity, sense of unity, sense of commonness. At the same time, it was compelling them to regulate their behavior in a particular manner, what to do, what not to do, what is right, what is wrong, some interdiction. They were trying to attach
some causal explanation with that totem also, कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो that is because of totem is खुश, if कुछ बुरा हुआ है that is because totem is angry. So उसके बेसिस पे डरखीम ने ये पाया कि ये जो टोटेम वर्शिप है that has character of religious force, it is serving two important function for Arunta tribe. पहला, ये इनमें एक सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी दे रहा है, इनमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दे रहा है, इनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी दे रहा है, एंड सेकेंड, इट वॉज ट्राइंग टू रेगुलेट देयर बिहेवियर. और सिंस ही इज कंसिडरिंग टोटेमिज्म एज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस फेथ, सो सिमिलरली ही इज ड्रॉइंग ए कंक्लूजन कि रिलीजन भी आपके लाइफ में दो फंक्शन परफॉर्म करता है. दैट इज, इट गिव्स यू ए सेंस ऑफ कोहेजन and it regulates your moral conduct, it regulates your behavior. How successfully religion does it, that now I will discuss with you people. यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. Now I'm saying कि how religion does so, how it brings a kind of unity, how it brings a kind of solidarity. In order to explain that thing, again Durkheim is taking help of this idea of sacred. हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि if anything is sacred, because society consider it as a sacred. So what is sacred? Sacredness is an emblem of society. ये सोसाइटी का एन एम्बलम है. जिस तरह से आपका नेशनल फ्लैग एक एम्बलम है आपकी देशभक्ति का, आपकी नेशनलिज्म का. सो हमने नेशनल फ्लैग को बताया था कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म. इन अ सिमिलर मैनर आई एम सेइंग दिस एम्बलम, कॉमन फेथ इन दिस टोटेम, कॉमन फेथ इन दिस ऑब्जेक्ट that you are considering as sacred, it is nothing, it is just a collective representation of society, it is just an emblem of society. By worshipping that common emblem, you are showing your faith indirectly for society. So if I reduce it in a simplest manner, if I say you in a simplest manner, what I would say, that by believing in that totem, by worshipping that emblem, by worshipping that something which you are considering sacred, ultimately you are showing faith for your society, because sacredness is not intrinsic. Something which is sacred, that is emblem of your society, that is collective representation of that society. And if you are worshipping that thing, you are worshipping society as such. So religion is nothing, religion is society in a divine form. So society divinized, personified, that is religion. So religion, what it does, by inculcating societal values inside you and by associating with you with society, by regulating your conduct, it tries to give you an impression that by subordinating yourself to the religion, by considering religion as superior force, you are subordinating yourself to society as such. So your worship of God is nothing, it is your worship of society as such. So you are not worshipping religion, you are not submitting yourself to religion, you are not being dominated by religion, rather you are submitting yourself to a higher superior moral force, that is society. और उसी सोसाइटी का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है वो टोटेम, वो एनिमल, वो सिंबल जिसको आप सैक्रेड मान के पूजा कर रहे हैं. ये बात समझ पा रहे हैं? व्हाट आई मीन टू से. दोस्त मैं बस ये बोल रहा था, आपने एक डाउट पूछा है कि रिलीजन कोहेजन कैसे लाता है. रिलीजन कोहेजन ऐसे लाता है कि एक लेवल पे आपको हिंदुत्व आइडियोलॉजी में बांधने की कोशिश करता है, एक लेवल पे आपको इस्लामिक आइडियोलॉजी में बांधता है बेसिकली, कि वी आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट. काऊ हमारे लिए सैक्रेड है, उनके लिए सैक्रेड नहीं है. हमारे लिए, मुस्लिम्स के लिए ये सैक्रेड है, उनके लिए नहीं है.
ये हमारा कल्चरल थीम है, उनका नहीं है। सो देखिए इस लेवल पे ये आपको एक ग्रुप में बांधता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रिलीजन ब्रिंग्स ए काइंड ऑफ कोहेजन, रिलीजन ब्रिंग्स ए काइंड ऑफ यूनिटी, बिकॉज ऑन वन हैंड just because you belong to a particular religion from your early childhood you learn some values just by being a Hindu। आरती कैसे की जाती है just by being a Hindu, सूर्य को जल कैसे दिया जाता है just by being a Muslim। बहुत सारे रिचुअल्स चाइल्डहुड से आपको कराए जाते हैं which are peculiar to Islam, which are peculiar to Christianity, which are peculiar to Hinduism। So by on one hand it inculcates certain values in you just because you belong to a particular religion, and on the other hand just because you belong to a particular religion, acting as a moral force, it tries to regulate your behavior, and by both these three means it gives you a sense of identity, it gives you a sense of unity, it gives you a sense of cohesion। ये बात समझ पा रहे हैं जो आपका डाउट है, whether I address or not? You are able to understand your doubt कि रिलीजन कैसे कोहेजन, कैसे यूनिटी और कैसे सॉलिडेरिटी लाता है? ये बात समझ पा रहे हैं दोस्त अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी? Whether I address your doubt कि how religion brings solidarity, how it brings cohesion, it is one agency। I am not that saying that it is the only agency। क्लियर? तो देखिए रिलीजन कैसे कोहेजन लाता है? देखिए रिलीजन इज जस्ट वन एजेंसी ऑफ ब्रिंगिंग सोशल यूनिटी। प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, ऐसी सोसाइटीज में दोस्त जहां पे डिजायर्स लिमिटेड हैं, डिजायर्स कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। सिंपल सोसाइटीज से ड्रॉ कर रहे हैं कंक्लूजन। आज की सोसाइटी में अगर आपने पूछा है कि जब सबके अलग अलग डिजायर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजायर्स हैं, तो हो सकता है कोई और एजेंसी हो टू मेंटेन व्हाट यूनिटी, सोशल कंट्रोल एंड समथिंग। हो सकता है कि आज की डेट में लाइक मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूं कि रिलीजन ब्रिंग्स यूनिटी, रिलीजन ब्रिंग्स सॉलिडेरिटी, रिलीजन ब्रिंग कोहेजन। ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे थे डरकीम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पॉजिटिविस्टिक स्टडी ऑफ वन सिंपलेस्ट सोसाइटी नोन एज अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मॉडर्न डे सोसाइटीज में लोगों का ऐसा बिलीफ है कि धीरे धीरे वी आर गेटिंग डिटैच फ्रॉम रिलीजन। इन मॉडर्न डे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इन केस ऑफ यूरोप ऑल्सो, in case of third world countries also, slowly and gradually role of religion will decline, people will get detached from religious ideas। so whether such societies will disintegrate, क्या ऐसी societies disintegrate हो जाएंगी? ऐसी societies जहां पे रिलीजन का रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रिलीजन का इन्फ्लुएंस आपके सोशल वर्ल्ड में कम हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन एज role and importance of religion will decline in such contemporary industrial society? Such doubts were raised by people कि अगर religion का जो function आपने draw किया है, conclude किया है on the basis of your study in one of the simplest society known as Arunta tribe in Australia, जैसे जैसे societies complex होंगी, जैसे जैसे societies modern होंगी, जैसे जैसे societies industrial societies बनेगी और रिलीजन का रोल और इंपॉर्टेंस कम होगा, तो क्या ये सोसाइटीज कंफ्लिक्ट में आ जाएंगी, क्योस में आ जाएंगी, डिसइंटीग्रेशन में आ जाएंगी? डरकीम इज सेइंग नो। इन सच सोसाइटीज रोल विच वाज प्लेड बाय रिलीजन इन सिंपल सोसाइटीज, दैट इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी एंड ट्राइंग टू रेगुलेट योर मोरल कंडक्ट, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर सेकुलर आइडियोलॉजीज, सेकुलर इंस्टीट्यूशंस। So in such modern societies, such unity, such cohesion, such identity may not come from religion. In modern day societies, such unity, such cohesion, such solidarity may come from a secular theme of nationalism, a secular theme of patriotism। So यहाँ पे ये फंक्शन शायद नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म ये सब परफॉर्म करेंगे। और हो सकता है
कि जब रिलीजन का रोल कम हो आपके सोशल डोमेन में, सोशल वर्ल्ड में, तो अदर सेकुलर इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी, लाइक पुलिस, लाइक सम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, they will try to bring moral control in such modern day societies, because those two conclusions he was drawing on the basis of his study in one of the most primitive society. आज की डेट में हो सकता है कि your moral conduct may not be regulated by religious ethos, but no doubt your moral conduct is regulated on the basis of some constitutional ethos, some legal ethos. ये बात समझ पा रहे हैं? This thing you are able to understand, friend, कि in contemporary societies where conflicting desires are there, complexity of desires are there, desires may contradict each other, ऐसी societies में secular ideologies, secular institutions, they may emerge and they may start performing the same function which was till now performed by religious institution. ये बात समझ पा रहे हैं? Now this thing is clear, friend. Now you are able to understand. And this was one good doubt. I would say कि ये जो डाउट अभी आपने पूछा, ये रियली में अच्छा डाउट है, और ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यस आप लोग इसको समझ रहे हैं जिस लेवल पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन यू हैव प्रूव कि यू आर डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देखिए, नाउ वी हैव डिस्कस दिस वन मेजर लैंडमार्क स्टडी ऑफ एमिल डर्कीम, जहाँ पे उनका फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव आपको दिख रहा है कि किसी सोशल ऑब्जेक्ट, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन? एमिल डर्कीम, वेयर इज सेइंग दैट रिलीजन in its most earliest form, it would have served two major functions for the people who were believing in that particular religious faith, that it was trying to give them a sense of solidarity and it was trying to regulate their moral conduct. That is regarded as one landmark study, and after Durkheimian study, number of other scholars like Radcliffe Brown, like Malinowski, they also studied on religion. Then ये जो बाइनरी डायकोटमी की बात की थी, सैक्रेड एंड प्रोफेन, उसकी बेसिस में क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस, ही लेटर ऑन ऑल्सो केम अप विद द आइडिया ऑफ बाइनरी अपोजिशन. टैलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डर्कीम के वर्क को सप्लीमेंट किया, एंड दैट एस्पेक्ट फ्रेंड्स आई विल डिस्कस इन क्रिटिसिज्म पार्ट, दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. सो नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद criticism of this particular work of Durkheim and previous year question paper. Along with that, I will start with another thinker, that is Karl Marx. Okay? So this thing I will discuss in the next class. For today's whatever I discuss, उसे लेके कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. All right. Thank you. Thank you too much.